मैं सुनीता, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें विस्तार रूप से। हाथरस में हुई रेप और मर्डर के खिलाफ लगातार विरोध बढ़ता ही जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता अपनी टिप्पणी से बाज नहीं आ रहे हैं। कोई लड़कियों को सभ्य आचरण की सलाह दे रहा तो कोई और कुछ। शायद वो ऐसा ही समाज बनाना चाहते हैं जहां औरतों को गुलाम समझा जाए और बराबरी की बात सिर्फ कागज और मन की बात तक ही सीमित रहे। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामा के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि पीड़िता का अंतिम संस्कार के परिवार के सदस्यों की मर्जी से पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई है। उनका कहना है कि यदि सबको सुबह तक रखा जाता तो बड़ी हिंसा होने की संभावना थी। अब पीड़िता के परिवार वाले और जनता यह सोचने पर मजबूर हैं कि सब पुलिस के अंदर रहते हुए बड़ी हिंसा कैसे हो सकती है। वहीं दूसरी ओर कई टीवी चैनलों पर यह दिखाया गया कि पीड़िता का अंतिम संस्कार उसके माता पिता की मर्जी के खिलाफ रात में ही कर दिया गया, जबकि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार रात के समय किसी भी शव का अंतिम संस्कार करना उचित नहीं माना जाता है। आसनसोल में SC ST OBC जॉइंट फोरम ने हजारों की संख्या में जुलूस निकाले तथा BNR मोड़ के पास सभा की। इस मौके पर फोरम के प्रेसिडेंट राजधारी प्रसाद, जॉइंट सेक्रेटरी मोतीलाल सोरेन, विश्वनाथ दास, प्रोफेसर दीपक माडी, उमेश्वर लाल जी तथा हजारों लोग मौजूद थे। भारी संख्या में पुलिस भी तैनात थी। अब आइए सुनते हैं आयोजकों ने क्या कहा। वेलकाम আছে আমাদের এখানে আমাদের এই ফোরামে সমস্ত যারা বিভিন্ন দলের নীতি আদর্শ ফলো করে তারা আমাদের এই ফোরামে এসছে, এই বিক্ষোভে এসছে, ধিক্কার মিছিলে এসছে। সেজন্য আমি তাদেরকে সকলকে ধন্যবাদ জানাবো। আমি আশা করি আগামী দিনে অন্ততপক্ষে আমাদের এই এলাকায় আমাদের পশ্চিমবাংলার একটা গর্ব আছে। আমরা নানা ভাষা, নানা জাতির মানুষ, নানা ধর্মের মানুষ এখানে বসবাস করি। আদিবাসী থেকে আরম্ভ করে ব্রাহ্মণ সকলেই আমরা পশ্চিমবাংলায় বাস করি। আমাদের পশ্চিমবাংলার ইতিহাস, আমাদের ট্রেডিশন হচ্ছে সকলে মিলেমিশে থাকা। আমি আশা করব যারা শুনছেন, যারা এসছেন, আমরা সকলে মিলেমিশে থাকবো এবং এই ধরনের পাশবিক ঘটনা যেন আমাদের এই পশ্চিমবাংলার বুকে না হয় তথা আমাদের এই এলাকায় না হয় সেটা অনুরোধ রাখবো। আমরা আশ্চর্য বোধ করছি আমাদের আসানসোল বার্নপুর এলাকার ওই যে মেয়ে উত্তরপ্রদেশ হাথরাসের মনীষা বাল্মীকি, সে তার পিতা এখানে আমাদের ইস্কো বার্নপুরে চাকরি করতো, তার ঠাকুরদা চাকরি করতো। আজ আমাদের এই বার্নপুর আসানসোল এলাকার মানুষদের আরও এর থেকে তীব্রতর গর্জে ওঠা দরকার, কারণ এ আমাদের মেয়ে মনীষা বাল্মীকি আমাদের এখানকার মেয়ে ধরে নিতে হবে। তাই আরও আগামী দিনে এইটা নিয়ে, এই বিষয় নিয়ে আরও জোরদার আন্দোলন করব, এই কামনা রেখে, এই আশা রেখে আজ আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। জয় জোহার। আপনি আমাদের এই ভদ্রলোকে মতিলাল সোরেন আমাদের হীরাপুর দলিতর সঙ্গে একটা খুব কর্মঠ ব্যক্তি ছিলেন। আজকে আপনাদের সামনে বললেন আমরা যুগে যুগে আমরা থাকি। এবারে আমাদের সামনে এই আসানসোল এলাকাতে কল্যাণ দাশগুপ্তা আমাদের বড় চেয়ারম্যান এসে গিয়েছেন। যেখানে আছেন মিশ্রা সাহেব ওনাকে আনুন, তাকে এটা মঞ্চে উনি একটা বলবেন। কল্যাণ দাশগুপ্তা, হ্যালো कल्याण मिश्रा जी कहाँ हैं? बाराबनी ब्लॉक में बीजेपी की ओर से खासकोटी मोड़ से एक रैली निकाली गई जो दोमानी बाजार में जाकर समाप्त हुई। वहीं एक सभा भी आयोजित किया गया जिसके मुख्य वक्ता रहे बाबुल सुप्रियो। তৃণমূলের নেতারা বুঝতে পারবে না কেন বাবুল সুপ্রিয়র এই সময় রাস্তায় নেমে গলি গলি ঘোরা উচিত না। তার কারণ আমি রেসপন্সিবল মানুষ। আমি মনে করি যে আমি নামলে আমারও ভালো লাগবে, আপনাদেরও ভালো লাগবে একে অপরের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু সেই দেখা করার মধ্যে আমরা করোনা দেখা করে ভালোবাসা জানাবো,
কিন্তু করোনার যুদ্ধে আমরা হেরে যাওয়ার চান্স বাড়িয়ে দেবো যদি আমাদের একে অপরকে আমরা সংক্রামিত করি। সেই জন্য बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय जी के स्वस्थ होकर वापस लौटने की खुशी में बाराबनी ब्लॉक के पुचरा ग्राम पंचायत अंतर्गत मदनपुर ग्रामवासी के ओर से बुधवार को बूढ़ा माझी पीर बाबा के स्थान में सिन्नी और चादर चढ़ाया गया। মাননীয় বিধান উপাধ্যায় তিনি এখন করোনা পজিটিভে আমরা সংক্রমণ এরিয়াতে দেখাতে সেই বিধানদার জন্য আমরা আজকে সকল গ্রামবাসী মিলে মদনপুর গ্রামের সমস্ত মানুষ একত্রিতভাবে হয়ে এইখানে বুড়াসাজির মাজারে এসে আমরা আজকে চাদর চাপাই বিধানদার জন্য সুস্থ থাকার জন্য কামনা করলাম এবং পুনরায় যখন সুস্থ হয়ে বিধানদা বাড়ি ফিরে আসবেন তখন তিনি এসে এইখানে ফের আমাদের সেন্নি মাজারে চাপানো হবে। আর যাতে ভারতবর্ষে আজ যে করোনা নিয়ে আমরা ভোগ করছি সেই করোনা যাতে এই ভারতবর্ষ থেকে বা সারা বিশ্ব থেকে যেমন চলে যায় সেই মনস্কামনা পূর্ণ করার জন্য আমরা আজ এইখানে মাজারে এসেছিলাম গ্রামবাসী সবাই একত্রিত হয়ে। আপনার নাম? আমার নাম সেলিম সাজি। আপনি কি করেন এখানে? আমি এই গ্রামের খাদিম। 7 अक्टूबर को विशेष बच्चों के स्कूल पहला कदम में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक श्री गोपाल सिंह जी का आगमन हुआ। संस्था के सचिव श्रीमती अनीता अग्रवाल जी ने सीएमडी सर को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया तथा स्कूल के बच्चों ने स्वागत गीत गाकर सीएमडी सर के मन को हर्षित कर दिया। यह दिन पहला कदम परिवार के लिए व यहाँ शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे दिव्यांगजनों के लिए अति उत्तम रहा, क्योंकि इस दिन अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक श्री गोपाल सिंह जी कर कमलों द्वारा दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चों को ब्रेल सक्षम कंप्यूटर का प्रशिक्षण देने हेतु कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किए। सर ने पहला कदम के कार्यों को देख पहला कदम के शिक्षकों, शिक्षिकाओं तथा संस्था के सचिव की काफी प्रशंसा की। अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काशीपुर विधायक सपन कुमार बेलथरिया ने बुधवार को अपनी विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथ अध्यक्षों के साथ तरुण संघ लाइब्रेरी में कर्मी सभा का आयोजन किया। विधायक ने कर्मी सम्मेलन में सभी को दलीय अंतर्द्वंद समाप्त करने की बात कही। कहा, हम सभी को एकजुट होकर सांप्रदायिक दल भाजपा के विरुद्ध लड़नी होगी। आने वाले दिनों में सत्य की विजय होनी चाहिए। इस सम्मेलन के दौरान कई अंचलों के अंचल अध्यक्षों के विरुद्ध कार्य में फांकी के लगाए गए आरोप पर उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर अध्यक्ष काम नहीं कर रहे हैं उनकी जगह नए चेहरे को लाया जाएगा, लेकिन कार्य में आलस्य नहीं चलेगा। विधायक ने कहा कि हम लोगों के लिए काम करते हैं, इसलिए आने वाले दिनों में लोगों के साथ खड़े रहेंगे। सभी को सरकारी सहायता मिले, किसी को किसी तरह की असुविधा ना हो, उसका हम ख्याल रखना होगा। उन्होंने सभी से लोगों की देखभाल करने, उनके साथ खड़े रहने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में कांड पर योगी सरकार और उनके पुलिस द्वारा की जा रही बर्बरता के विरोध में बुधवार को साकतोड़िया आंचलिक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में क्षेत्र अंतर्गत विमान बिहारी मुखर्जी उर्फ बच्चू दा के नेतृत्व में विक्षोभ रैली निकाली गई। जानकारी के अनुसार रैली पर्सनल मोड़ से शुरू होकर डीसरगढ़ पोस्ट ऑफिस से साकतोड़िया ग्राम होते हुए ईसीएल मुख्यालय पर पहुंची, जहां सभा में तब्दील हो गई। इस सभा में उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई मनीषा कांड पर योगी सरकार और उनके पुलिस द्वारा की जा रही बर्बरता, पीड़ित परिवार से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मिलने से रोकने की कोशिश, किसानों, मजदूरों और सरकारी उद्योगों पर मनमानी कानून थोपकर उनके अधिकार छीनने की कोशिशों के विरुद्ध योगी और मोदी सरकार की नीतियों की कांग्रेस के विमान बिहारी मुखर्जी, अजय मसीह, योगेशपति त्रिपाठी ने पुरजोर आलोचना की। अजय मसीह और विमान बिहारी मुखर्जी ने योगी और मोदी सरकार की आलोचना की तथा पीड़ित परिवार को सुरक्षा, मुआवजा और न्याय दिलाने की बात कर योगी जी से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की। योगेशपति त्रिपाठी ने केंद्र की मोदी जी ने भाजपा की सरकार को देश बेचने से बाज आने का आग्रह किया।
सरकारी उद्योगों को निजी हाथों में सौंपने की कोशिश बंद करने को कहा। यदि मोदी जी अपनी इन हरकतों में परिवर्तन नहीं लाते हैं तो कांग्रेस देशवासियों के सहयोग से उनके खिलाफ देशव्यापी बृहत्तर आंदोलन के लिए बाध्य होगा। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विमान बिहारी मुखर्जी, योगेशपति त्रिपाठी, पजय मसीह के अलावा आर.के. चौबे, अमजद, बंटी, नरेन एवं सैकड़ों की संख्या में स्त्री पुरुष ने भाग लिया। राहुल गांधी जिंदाबाद, जनता गांधी जिंदाबाद, अन्याय के खिलाफ में राहुल प्रियंका लौट के, अन्याय के खिलाफ में राहुल प्रियंका लौट के, अन्याय के खिलाफ में राहुल प्रियंका लौट के। हम लोग यहाँ एक छोटा सा 2-5 मिनट के लिए कुछ कहेंगे। हम कांग्रेस का विक्टोरिया डिविजनल कांग्रेस का हम लोग यहाँ पर एक रैली छोटा सा निकाले हैं, उसमें हमारी बहनें भी हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं। और ये जो है डेमोन्स्ट्रेशन है, ये पूरे देश में क्या हो रहा है आप टीवी में, पेपर पर रोज पढ़ रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ हथरस में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। और भी जगह जो हो रहा है उसको न्याय का भी हम लोग मांग कर रहे हैं। ये सरकार जो भी न्याय मांगने जाती है उसको रासुका लगा देता है, देशद्रोही बोल के उस पर केस करता है, और न्याय देने का जब बात आता है बच्चियों को उससे पीछे जाता है। और ये सरकार मजदूरों का, किसानों का साथ आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, मजदूरों का साथ देख रहे हैं क्या हो रहा है। सब इंडस्ट्री बेच दे रहा है, सब कल कारखाना सरकारी बेच दे रहा है, सब अडानी और अंबानी के हाथ में दे रहा है। और अपराध, हत्या, ये सब कांड उत्तर प्रदेश में हो रहा है और कानून की व्यवस्था वहां दिनों दिन एकदम लचर और गिरी हुई। बड़ी बड़ी बातें भाजपा की सरकार, योगी जी और मोदी जी तो करते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश का ध्वस्त है। उत्तर प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है और योगी के गुरु आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की पांडेश्वर थाना पुलिस की पहल पर विभिन्न क्षेत्र से 15 गुम व चोरी हुए मोबाइल फ़ोन बरामद कर उनके मालिकों को वापस कर दिया गया। ये मोबाइल विभिन्न जगहों से गुम या चोरी हो गए थे। दुर्गापुर थाना 2 के सीआई देवज्योति साहा और थाना प्रभारी संजीव दे की ओर से बरामद मोबाइल लोगों को वापस कर दिया गया। इस दौरान अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। बुधवार को आसनसोल के एमपी बाबुल सुप्रियो ने प्रेस मीट में कहा कि ये जो सरकार चल रही है उसे सरकार नहीं कहा जा सकता। आइए आप उनकी ही आवाज़ में सुनते हैं। काल का सब आज ही बता देना देंगे तो कल होना हो, सिनेमा बनाने की जरूरत क्या है। कल आप देखिएगा जो होगा कल होगा। प्रशासन तो हमको सब चीज़ से रोकती है, सब चीज़ से रोकती है, लेकिन इतना बड़ा जो मकान में जो सरकार चल रही है उसको सरकार नहीं बोलते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बाबा साहब आम्बेडकर के नेतृत्व में, उनमें जितने भी लोग थे, सुन लीजिए, उनमें जितने যতজন লোক ছিল কনস্টিটিউশন অ্যাসেম্বলিতে যখন আমাদের কনস্টিটিউশন তৈরি হয়েছিল বাবা সাহেব আম্বেদকরের, প্রত্যেকে পড়ালেখা অত্যন্ত শিক্ষিত মানুষ ছিলেন। কেউ বিদেশ থেকে ব্যারিস্টার হয়েছেন, কেউ কেমব্রিজ থেকে পড়েছেন, কেউ অক্সফোর্ড থেকে পড়েছেন। তারা কেউ কখনো ভাবেননি যে কখনো মমতা ব্যানার্জির মতো কোনো মুখ্যমন্ত্রী আসতে পারেন, তিনি ফেডারেল ব্যাপারটা কী, কনস্টিটিউশন ব্যাপারটা কী, মানে এমন আমিও নববর্ষকে পড়েছি, এমন দুষ্টু ছাত্র ছিলাম যে এমন ঘটনা বদমাইশি করতাম যে হেডমাস্টারের ঘরে গিয়ে পানিশমেন্ট দিয়েছে, মাছের কাঁটা চারদিকে ফেলে দিয়ে, মাছ টিফিন করেছে, হ্যাঁ ঠিক আছে টিফিন খেতে দেবো, ভেতরে বসে টিফিন খাও, তো সেটা টিফিন খেয়েছি প্রায় হেডমাস্টারের ঘরে বসে, কিন্তু মাছের কাঁটাগুলো চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। স্কুলের যখন সংবিধান হয়েছিল সেই সংবিধানে আমরা কখনো ভাবেইনি যে কোনো ছাত্র হেডমাস্টারের ঘরে টিফিন খেতে খেতে মাছের কাঁটা ছড়িয়ে দেয়। সেই জন্য প্রাইভেট চিফ মিনিস্টারকে মানে হেডমাস্টারকে ভাবতে হয়েছিল যে একে কী শাস্তি দেয়, সংবিধানে ছিল না। তো মমতা ব্যানার্জি এরকম সমস্ত ঘটনা ঘটান যে সংবিধান যারা আমাদের বানিয়েছিলেন তারা কখনো ভাবতেই পারেননি যে চিফ মিনিস্টার এসব কাজ করতে হবে। সেই জন্য আমাদেরকে আরও অনেক নতুন কিছু বানাতে হবে, আর বেশি দিন দরকারও হবে না, চিন্তা করার কিছু। আমি লক্ষণটাকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি আপনাদের।